Chapter 7. The Deccan and the Southern India. The Mauryan period lasted from 321 BC to 185 BC. After the Mauryas, India was divided into a number of kingdoms. The Shunga, Kamvas, Satavahana and Kharvelas were part of the subsequent history of northern India. Likewise, Satavahanas, Cholas, Pandyas, and Cheras ruled in the South India. Around this time many foreign tribes also entered the Indian subcontinent through the northwestern mountain passes. Mauryan period 321 BC से 185 BC तक चला. मौर्यास के बाद इंडिया कई छोटे छोटे किंगडम्स में विभाजित हो गया. नॉर्दर्न इंडिया में शुंगा, कम्वास, सतवाहना और खरवेलास जैसे डायनेस्टीज का शासन था. इसी तरह सदर्न इंडिया में सतवाहनास, चोलास, पांड्यास और चेरास राजवंशों का विकास हुआ. इसी समय कई फॉरेन ट्राइब्स उत्तर पश्चिमी पहाड़ी पासेस से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में प्रवेश करने लगे. किंगडम्स ऑफ द डेक्कन. Dakshin, a Sanskrit word meaning south, distorted by the British became Deccan, and in the southern part of the Indian peninsula, it was known as Dakshin Patha in ancient times. It was that part of India which lay to the south of the Vindhyas and river Narmada. To the south of the Deccan there lived the Dravidian language-speaking peoples. The founder of the Satavahanas dynasty was Simuka. दक्षिण एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ साउथ होता है. ब्रिटिश द्वारा इसे डेक्कन कहा जाने लगा. एंशिएंट टाइम्स में इसे दक्षिण पथा के नाम से जाना जाता था. यह इंडिया का वह भाग था जो विंध्यास और नर्मदा रिवर के दक्षिण में स्थित था. डेक्कन के दक्षिण में द्राविडियन लैंग्वेज स्पीकिंग लोग निवास करते थे. सतवाहनास डायनेस्टी के फाउंडर सिमुका थे. दी सतवाहनास. इन द डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया, द सतवाहनास वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेटिव सक्सेसर्स ऑफ द मौर्यास. दे आर ऑल्सो नोन एज द आंध्रस. दे एनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स. Therefore, the country became very prosperous under them. The most famous of the Satavahana kings was Gautamiputra Shatkarni. डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में सतवाहनास मौर्यास के सबसे महत्वपूर्ण नेटिव सक्सेसर्स थे. इन्हें आंध्रस के नाम से भी जाना जाता है. उन्होंने ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा दिया, जिससे देश बहुत समृद्ध प्रॉस्परस हुआ. सतवाहना डायनेस्टी के सबसे प्रसिद्ध किंग गौतमीपुत्र शातकर्णी थे. गौतमीपुत्र शातकर्णी 106 से 130 AD. गौतमीपुत्र शातकर्णी was regarded as the lord of Dakshin Patha. He was a great conqueror. Before his accession, the Sakas had driven the Satavahanas away from Nasik in Maharashtra and western India. But Gautamiputra Shatkarni defeated the Sakas and reinstated the power and prestige of the Satavahanas. गौतमीपुत्र शातकर्णी को दक्षिण पथा का लॉर्ड माना जाता था. वे एक महान विजेता, ग्रेट कॉन्करर थे. उनके शासन में आने से पहले साकस ने सतवाहनास को नासिक, महाराष्ट्र और वेस्टर्न इंडिया से बाहर कर दिया था. लेकिन गौतमीपुत्र शातकर्णी ने साकस को हराया और सतवाहनास की शक्ति, पावर और प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज को फिर से स्थापित किया. द सतवाहना किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम द कृष्णा डेल्टा टू द माउथ ऑफ द गोदावरी इन द ईस्ट and extended up to Nasik, the Kathiawar area, for some time, and a little beyond the Narmada, into the north.
सतवाहना किंगडम कृष्णा डेल्टा से गोदावरी रिवर के मुहाने तक फैला हुआ था। यह नासिक, कथियावर रीजन कुछ समय के लिए और उत्तर में नर्मदा रिवर तक विस्तारित था। Contact between South India and North India and promotion of trade and commerce. दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच संपर्क और व्यापार वाणिज्य का विस्तार। To establish good relationship between South India and North India, the Satavahana kingdom played very important role. There was brisk trade between the Deccan and northwestern India. The growth of trade and commerce boosted the prosperity of numerous towns and, in fact, that of the entire kingdom. On the west coast, the port of Bharuch provided good chance for foreign trade. This port was used by the ships coming from Iraq, Persia, Arabia and Egypt. Trade with Burma and Malaya was carried on through ports in the Godavari Delta, on the eastern seacoast. उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच अच्छे संबंध, गुड रिलेशनशिप स्थापित करने में सातवाहन साम्राज्य, सतवाहना किंगडम ने महत्वपूर्ण भूमिका, इम्पोर्टेंट रोल निभाई। दक्कन, डेक्कन और उत्तर पश्चिमी भारत, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के बीच तेज व्यापार, ब्रिस्क ट्रेड होता था। व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स के विस्तार से कई नगरों, टाउन्स की समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी बढ़ी और पूरा साम्राज्य, किंगडम समृद्ध हुआ। पश्चिमी तट, वेस्ट कोस्ट पर स्थित भड़ौच, बारूच का बंदरगाह विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र, इम्पोर्टेंट हब था। इस बंदरगाह का उपयोग इराक, फारस, पर्शिया, अरब, अरेबिया और मिस्र, इजिप्ट से आने वाले जहाज़ों, शिप्स द्वारा किया जाता था। इसके अलावा बर्मा, बुर्मा और मलया के साथ भी व्यापार किया जाता था, जो कि गोदावरी डेल्टा के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों, पोर्ट्स के माध्यम से संचालित होता था। Administration of Satavahanas. The Satavahanas were good administrators. The king got unlimited power. The provincial governor was generally appointed as the Senapati. The administration in the rural areas was also placed in the hands of a Golmika, who was the head of a military regiment. The headman of each village was responsible for collecting land revenue and other taxes. सातवाहन, सतवाहना, शासक कुशल प्रशासक, good administrators थे। राजा को असीमित शक्ति, अनलिमिटेड पावर प्राप्त थी। प्रांतीय शासन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रत्येक प्रांत, प्रोविंस का शासन सेनापति के हाथों में होता था, जिसे राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था। ग्रामीण प्रशासन, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, गांवों का प्रशासन एक गोलमिका के अधीन था, जो एक सैन्य रेजिमेंट, मिलिट्री रेजिमेंट का प्रमुख होता था। ग्राम प्रधान, विलेज हेडमैन, प्रत्येक गांव में एक मुखिया, हेडमैन होता था, जिसकी जिम्मेदारी भूमि कर, लैंड रेवेन्यू और अन्य कर, अदर टैक्सेस संग्रह करना था। सातवाहन प्रशासन में स्थानीय अधिकारियों, लोकल ऑफिसर्स की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी, जो गांवों और नगरों में कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखते थे। रिलीजन, rich merchants and the leaders of guilds of artisans had enough money to spare to make Jainism and Buddhism more popular. Most of the merchants were either Buddhists or Jains. Therefore, they made generous donations to the cause of popularizing them. The donated money was used to decorate stupas and chaitis.
The chaityas were halls of Buddhist worship, while the stupas were large semicircular mounds in which the relics of Buddha or Buddhist monks were enshrined. Thus, stupas were the most important of all Buddhist monuments. There are two famous stupas, one at Sanchi, near Bhopal, and the other at Amravati in Maharashtra. सातवाहन काल में धर्म, रिलीजन का बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ। समृद्ध व्यापारी, रिच मर्चेंट्स और शिल्पकार संघों, गिल्ड लीडर्स ऑफ आर्टिसंस के पास पर्याप्त धन था, जिससे उन्होंने जैन धर्म, जैनिज्म और बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म को लोकप्रिय बनाने के लिए दान, डोनेशंस किए। अधिकांश व्यापारी या तो बौद्ध, बुद्धिस्ट थे या जैन, इसलिए उन्होंने इन धर्मों के प्रचार में उदार योगदान, जेनरस कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया। दान किए गए धन का उपयोग स्तूपों, स्टूपास और चैत्यगृहों, चैत्यस को सजाने के लिए किया गया। चैत्या ये बौद्ध पूजा स्थल, बुद्धिस्ट वर्शिप हॉल्स थे, जहां अनुयायी प्रार्थना करते थे। स्टूपा ये बड़े अर्धगोलाकार स्मारक, लार्ज सेमिसर्कुलर माउंट्स थे, जिनमें बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष, रेलिक्स ऑफ बुद्धा और बुद्धिस्ट मंक्स रखे जाते थे। प्रसिद्ध स्तूप, फेमस स्टूपास। सांची भोपाल के पास स्थित है। अमरावती महाराष्ट्र में स्थित है। स्तूपों को बौद्ध स्मारकों, बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और ये धर्म के प्रचार प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। The monasteries that were near these stupas were called viharas. A vihara consisted of central hall with doorway entrance from veranda in front. Buddhist monks lived in the viharas. Many of the Buddhist viharas were built close to cities. Two such monasteries have been found at Taxila, near Peshawar, and at Sarnath, near Varanasi. The monks living in these monasteries would go into the cities and beg for alms. Some Buddhist monks lived in monasteries which were carved into hillsides. In fact, these monasteries were huge caves. Like stupas and chaityas, viharas were also decorated with sculptures. The monasteries at Karle and Vidisa are remarkable specimens of architecture. स्टूपास के पास स्थित बौद्ध मठ, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को विहारास कहा जाता था। ये बौद्ध भिक्षुओं, बुद्धिस्ट मंक्स के निवास स्थल थे। विहारों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ विहारास। एक केंद्रीय कक्ष, सेंट्रल हॉल होता था। इसके आगे बरामदा, वरेंडा और मुख्य द्वार, डोरवे एंट्रेंस होता था। बौद्ध भिक्षु यहाँ रहते थे और धार्मिक गतिविधियों में संलग्न रहते थे। विहारों का स्थान और महत्व। अधिकांश विहार नगरों के पास, नियर सिटीज, बनाए गए ताकि भिक्षु आसानी से लोगों से संपर्क कर सकें। प्रसिद्ध बौद्ध विहार, फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। तक्षशिला, टैक्सिला, पेशावर के पास स्थित था। सारनाथ, वाराणसी के पास स्थित था। गुफाओं में बने विहारास कार्व्ड इनटू हिलसाइड्स। कुछ बौद्ध भिक्षु पहाड़ियों में खोदी गई गुफाओं, केव मोनेस्ट्रीज में रहते थे। ये विशालकाय गुफाएं, ह्यूज केव्स होती थी, जो उनके ध्यान और अध्ययन के लिए उपयुक्त थी। विहारों की सजावट, डेकोरेशन ऑफ विहारास। शिल्पकारी, स्कल्पचर्स द्वारा अलंकृत किया जाता था। स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण माने जाते हैं। प्रसिद्ध विहार, फेमस विहारास।
कार्ले करले महाराष्ट्र में स्थित यह विहार अपनी शानदार वास्तुकला रिमार्केबल आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध है। विदिशा विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित एक और महत्वपूर्ण विहार। विहार न केवल बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान रेसिडेंसेस ऑफ बुद्धिस्ट मंक्स थे, बल्कि धार्मिक अध्ययन और शिक्षा केंद्र सेंटर्स फॉर रिलीजियस स्टडीज एंड एजुकेशन के रूप में भी कार्य करते थे। किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। दी शुंगा डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड बाय पुष्यमित्र ruled for 112 years. The famous Sanchi Stupa near Bhopal was built during the Shunga era. The gateways and railings around the stupa were built during Satavahana rule. The Shangas were always at war with the Satavahanas and the Deccan powers and with Kharvela, king of Kalinga. Kharvela even attacked Patliputra. The Shangas were finally overthrown by the Kamvas. The rule of the Kamva dynasty was, however, short-lived. एक शुंग वंश शुंगा डायनेस्टी। स्थापना एस्टैब्लिशमेंट शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंगा ने की थी। शासनकाल रूल ड्यूरेशन यह वंश 112 वर्षों तक शासन में रहा। 2. सांस्कृतिक योगदान कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस। सांची स्तूप सांची स्तूपा भोपाल के पास स्थित प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण शुंग काल में हुआ। इस स्तूप के तोरण द्वार गेटवेज और रेलिंग्स का निर्माण सातवाहन वंश के समय हुआ। 3. सैन्य संघर्ष मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स। शुंग और सातवाहनों शुंगा वर्सेस सतवाहनास। शुंग शासकों का लगातार सातवाहनों और दक्षिण भारतीय शक्तियों से संघर्ष होता रहा। खारवेल और खरवेला पटलिपुत्र। कलिंग के राजा खरवेला किंग ऑफ कलिंगा ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। 4. शुंग वंश का पतन डिक्लाइन ऑफ शुंगा डायनेस्टी। शुंगों को कण्व वंश कम्वा डायनेस्टी ने पराजित किया। कण्व वंश का शासन रूल ऑफ कम्वास। कण्व वंश का शासन बहुत अल्पकालिक शॉर्ट लिव्ड रहा। किंगडम्स ऑफ द साउथ। द सदर्न किंगडम्स। South India saw the rise of 3 important kingdoms, Chola, Pandya and Chera. These kingdoms made rapid progress during the early history of South India. The main source of our knowledge about these kingdoms is the Sangam literature. दक्षिणी राज्यों का उदय Rise of Southern Kingdoms. दक्षिण भारत में 3 प्रमुख राज्यों का उत्थान हुआ। चोला राजवंश। पांड्या राजवंश। चेरा राजवंश। तेज प्रगति रैपिड प्रोग्रेस। ये राज्य प्राचीन दक्षिण भारत के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राज्य थे। इन राज्यों ने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत उन्नति की। स्रोत सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इन राज्यों के बारे में मुख्य जानकारी संगम साहित्य संगम लिटरेचर से मिलती है। संगम साहित्य तमिल कविताओं और ग्रंथों का संग्रह है जो इन राजवंशों के शासन, समाज और संस्कृति पर प्रकाश डालता है। 1. द चोला किंगडम। The Chola kingdom was situated in an area to the northeast of the Pandya kingdom, between the Pennar and the Vela rivers. The chief center of this kingdom was Urayur, a place famous for its cotton trade. Karikala was the most powerful Chola ruler. A Chola king named Elara conquered Sri Lanka and ruled over it for nearly 50 years.
This proves that the Cholas had a fleet of large, seaworthy ships and were experts in naval warfare. Kaveripattinam was the capital of Chola. भौगोलिक स्थिति, geographical location. चोल साम्राज्य पांड्य राज्य, पांड्या किंगडम, के उत्तर पूर्व में स्थित था। यह साम्राज्य पेन्नार और वेलर नदियों के बीच फैला हुआ था। मुख्य केंद्र, मेन सेंटर। इस राज्य का प्रमुख केंद्र उरैयूर था। उरैयूर कपास, कॉटन, व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध शासक, फेमस रूलर। कारिकाला चोला, चोल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसने अपने शासनकाल में राज्य का विस्तार और समृद्धि सुनिश्चित की। श्रीलंका पर विजय, कॉन्क्वेस्ट ऑफ श्रीलंका। एलारा नामक एक चोल राजा ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। उसने वहां लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। इससे यह प्रमाणित होता है कि चोलों के पास मजबूत नौसेना, नेवल फ्लीट थी और वे समुद्री युद्ध, नेवल वॉरफेयर में निपुण थे। राजधानी, कैपिटल। चोल साम्राज्य की राजधानी कावेरीपट्टिनम थी। 2. The Pandya Kingdom. The Pandya Kingdom was famous for pearls. The Pandyas occupied the southernmost and the southeastern portion of the Indian peninsula. It covered Tirunelveli, Ramnad and Madurai in Tamil Nadu. The Sangam literature talks about some of the Pandya kings of whom Nedunchezhian is the best known. The third Sangam in Madurai was probably held under his patronage. The Pandyans were great patrons of art and literature. Madurai was the hub of the Pandya kingdom. विशेषता, स्पेशलिटी। पांड्य साम्राज्य मोतियों, पर्ल्स के लिए प्रसिद्ध था। उनके राज्य में मोती उत्पादन और व्यापार बड़े पैमाने पर किया जाता था। भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल लोकेशन। पांड्य शासकों ने भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन पेनिनसुला के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्से पर शासन किया। इसका विस्तार तिरुनेलवेली, रामनद और मदुराई, वर्तमान तमिलनाडु तक था। प्रसिद्ध शासक, फेमस रूलर। संगम साहित्य, संगम लिटरेचर में कई पांड्य शासकों का उल्लेख मिलता है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध राजा नेदुनचेझियन था। संगम सभाएं, संगम असेंबलीज। ऐसा माना जाता है कि तीसरी संगम सभा, थर्ड संगम असेंबली, मदुराई में नेदुनचेझियन के संरक्षण में आयोजित की गई थी। संगम काल में कला और साहित्य, आर्ट एंड लिटरेचर को विशेष रूप से बढ़ावा मिला। राजधानी, कैपिटल। मदुराई पांड्य साम्राज्य का मुख्य केंद्र और राजधानी थी। यह शिक्षा, व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। 3. द चेरा किंगडम। द चेरा किंगडम was situated in the west and north. It included the regions between the sea and the mountains covering a portion of modern Kerala state. Vanji was its capital. This kingdom owed its eminence to trade with the Romans. Nedunchaladan was a famous Chera king who fought against the Cholas and the Pandyas. भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल लोकेशन। चेर साम्राज्य पश्चिमी और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में स्थित था। यह समुद्र और पर्वतों के बीच फैला हुआ था, जिसमें आधुनिक केरला का एक बड़ा भाग शामिल था। राजधानी, कैपिटल। वंजी
वंजी चेर साम्राज्य की राजधानी थी। व्यापार और विदेशी संबंध, ट्रेड एंड फॉरेन रिलेशंस। चेर साम्राज्य रोमांस के साथ व्यापार के कारण प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने विदेशी व्यापार के माध्यम से अपनी समृद्धि और आर्थिक शक्ति बढ़ाई। प्रसिद्ध शासक, फेमस रूलर, नेदनशलादन चेर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। उन्होंने चोल और पांड्य साम्राज्यों के खिलाफ युद्ध किया और अपने राज्य की शक्ति को बढ़ाया। ट्रेड एंड राउट्स। Chola, Pandya and Chera were greatly enriched by their trade with Rome. There was brisk foreign trade between India and the West. The Romans were the chief customers of South Indian goods such as spices, textiles, precious stones, birds, usually peacocks, and animals such as bears and monkeys. The markets of Rome were full of Indian luxury goods. Roman ships came from the Red Sea across the Arabian Sea to the Malabar coast or sailed up the Straits of Mannar to the east coast. दक्षिण भारतीय राज्यों का व्यापार, ट्रेड ऑफ चोला, पांड्या एंड चेरा किंगडम्स। चोल, पांड्य और चेर राज्यों ने रोम के साथ व्यापार के माध्यम से बहुत समृद्धि प्राप्त की। भारत और पश्चिमी देशों, विशेष रूप से रोम, के बीच सक्रिय विदेशी व्यापार चलता था। मुख्य निर्यात सामग्री, मेजर एक्सपोर्टेड गुड्स, मसाले, स्पाइसेस, वस्त्र, टेक्सटाइल्स, कीमती रत्न, प्रेशियस स्टोन्स, पक्षी, विशेष रूप से मोर, पीकॉक्स, जानवर, भालू और बंदर सहित बियर्स एंड मंकीज। रोम में भारतीय वस्तुओं की मांग, डिमांड फॉर इंडियन गुड्स इन रोम। रोम के बाजार भारतीय विलासिता की वस्तुओं, लक्जरी गुड्स, से भरे रहते थे। भारतीय उत्पादों की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि रोम से सोने और चांदी का निर्यात भारत की ओर अधिक होने लगा। व्यापार मार्ग, ट्रेड राउट्स। रोमन जहाज, रोमन शिप्स, लाल सागर, रेड सी से होते हुए अरब सागर, अरेबियन सी पार कर मालाबार तट, मलाबार कोस्ट तक पहुंचते थे। कुछ जहाज मन्नार जल संधि, स्ट्रेट्स ऑफ मन्नार, को पार कर भारत के पूर्वी तट, ईस्ट कोस्ट तक भी जाते थे। The condition of the trade was very good in the country. The South Indians sent their goods to the North Indians. The trade made South Indian kingdoms very rich. देश में ट्रेड की स्थिति बहुत अच्छी थी। साउथ इंडियंस ने अपने गुड्स उत्तर भारतीयों को भेजे। इस ट्रेड ने साउथ इंडियन किंगडम्स को बहुत समृद्ध बना दिया। Foreign invasions. The Mauryan Empire split into many kingdoms after the death of Ashoka. The northwestern part of India now saw the coming of a number of warlike foreign races, the Bactrians, Parthians, Sakas, and Kushanas. They came in the years between 200 BC and 100 AD. अशोक की मृत्यु के बाद मौर्यन एम्पायर कई किंगडम्स में विभाजित हो गया। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में कई युद्धप्रिय विदेशी जातियां आईं, बैक्ट्रियंस, पार्थियंस, साकस और कुशानास। वे लगभग 200 बीसी से 100 एडी के बीच भारत आए। Invasion of the Bactrian Greeks. First of all, the Bactrian Greeks came to the northwestern part of India. They were also called the Indo-Greeks. Menander, their most powerful king, was also known as Milinda. He embraced Buddhism. A number of coins of their dynasty give information about this dynasty.
सबसे पहले बैक्ट्रियन ग्रीक्स भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में आए। इन्हें इंडो ग्रीक्स भी कहा जाता था। मेनांडर, जो उनका सबसे शक्तिशाली किंग था, मिलिंदा के नाम से भी प्रसिद्ध था। उसने बुद्धिज्म को अपना लिया। इस डायनेस्टी के कई कॉइन्स मिले हैं जिनसे इनके शासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। Invasion of the Sakas. After the Indo-Greeks, the Sakas came to India. They captured a larger part of India than the Greeks did. They came to western India and overran Sindh and Saurashtra. They finally settled down in Kathiawar and Malwa. The most famous Saka ruler in India was Rudradman, 130 से 150 AD. These Sakas successfully checked the expansion of the Satavahanas north of the Narmada. इंडो-ग्रीक्स के बाद साकस भारत आए। उन्होंने यूनानियों की तुलना में भारत के अधिक हिस्से पर कब्जा किया। वे वेस्टर्न इंडिया में आए और सिंध तथा सौराष्ट्र को जीत लिया। अंततः वे कथियावर और मालवा में बस गए। भारत में सबसे प्रसिद्ध सका रूलर रुद्रदमन 130 से 150 AD था। शकों ने सतवाहनास के विस्तार को नर्मदा के उत्तर में सफलतापूर्वक रोक दिया। Invasion of the Kushanas. They first occupied Bactria or North Afghanistan by displacing the Sakas. Gradually, they advanced to the Kabul Valley and seized Gandhara, replacing the rule of the Greeks and the Parthians in these areas. They then established themselves at Taxila and Peshawar. Their two major centers of power were Peshawar and Mathura. कुषाणों ने सबसे पहले बैक्ट्रिया, उत्तर अफगानिस्तान पर कब्जा किया और वहां से साकस को हटा दिया। धीरे धीरे वे काबुल वैली तक पहुंचे और गंधारा पर अधिकार कर लिया, जिससे ग्रीक्स और पार्थियंस का शासन समाप्त हो गया। बाद में उन्होंने टैक्सिला और पेशावर को अपने नियंत्रण में ले लिया। उनके दो प्रमुख शक्ति केंद्र पेशावर और मथुरा थे। कनिष्का was the most famous Kushana ruler. From the statue, situated at Mathura, it is evident that he was a well-built man. He worked hard to make his kingdom strong and powerful in northern India. He conquered Kashmir, Punjab and Mathura. But his real fame rests upon the wholehearted patronage he gave to Buddhism. He organized a Buddhist council in Kashmir where the doctrines of Mahayana form of Buddhism were finalized. He gave monetary support for building Buddhist monasteries. Kanishka was also a great patron of art and the Sanskrit language. कनिष्क कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। मथुरा में स्थित उनकी प्रतिमा से पता चलता है कि वे एक शक्तिशाली और बलशाली व्यक्ति थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को उत्तर भारत में मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने कश्मीर, पंजाब और मथुरा पर विजय प्राप्त की। लेकिन उनकी असली प्रसिद्धि बौद्ध धर्म के प्रति उनके समर्पण के कारण है। उन्होंने कश्मीर में एक बौद्ध परिषद, बुद्धिस्ट काउंसिल, का आयोजन किया, जिसमें महायान बौद्ध धर्म, महायाना बुद्धिज्म, के सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बौद्ध विहारों, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके अलावा कनिष्क कला और संस्कृत भाषा के भी महान संरक्षक थे। Art. Greek sculpture was brought to northern India from the contacts Western Asia. Indian craftsmen, especially in the northwestern frontiers of India in Gandhara, were greatly influenced by this new style of sculpture.
They adopted the style with local influence and thus gave rise to a new kind of art in which the images of Buddha were made in the Greco-Roman style. This new style of art came to be known as Unani Murtikala, Greek sculpture, पश्चिमी एशिया, वेस्टर्न एशिया के संपर्क से उत्तरी भारत में आई। भारतीय कारीगरों, इंडियन क्राफ्ट्समैन, विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स के गांधार, गंधारा क्षेत्र में इस नई मूर्तिकला शैली से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने इस यूनानी रोमन, ग्रीक और रोमन शैली को भारतीय प्रभावों के साथ अपनाया और इस तरह बुद्धा की छवियों को एक नई कला शैली में उकेरा गया। इस नई कला शैली को गांधार कला, गंधारा आर्ट के नाम से जाना गया। गंधारा आर्ट। The Mathura school of art was the result of Gandhara art. Famous specimen of this art is the headless statue of Kanishka found at Mathura. गांधार कला के प्रभाव से मथुरा कला शैली, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का विकास हुआ। यह भारतीय और यूनानी रोमन प्रभावों का एक अनूठा मिश्रण था। इस कला का एक प्रसिद्ध उदाहरण कनिष्का की विहीन मूर्ति हेडलेस स्टैच्यू है, जो मथुरा में पाई गई थी। यह मूर्ति इस शैली की विशेषता को दर्शाती है, जिसमें स्थानीय और विदेशी कला तत्वों का समावेश हुआ था। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। New ideas on religion, art and science influenced various aspects of Indian culture because of contacts with Central Asia. The Greek too enriched Indian culture immensely. India came in closer contact with Iran and Western Asia. The Kushanas controlled the Silk Route, which started from China and passed through their empire in Central Asia and Afghanistan to Iran and Western Asia. This trade route was a great source of income to the Kushanas. A number of Indian goods were carried to the towns and ports of the Mediterranean Sea. This brought gold in India. Booming trade made towns like Taxila, Mathura, and Ujjaini prosperous and important cities. धर्म, कला और विज्ञान से जुड़े नए विचारों ने भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर, को गहराई से प्रभावित किया, विशेष रूप से मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया के संपर्क में आने से। यूनानियों, ग्रीक्स ने भी भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। भारत का ईरान और पश्चिमी एशिया, वेस्टर्न एशिया के साथ घनिष्ठ संपर्क बढ़ा। कुशानास ने रेशम मार्ग, सिल्क राउट पर नियंत्रण स्थापित किया, जो चाइना से शुरू होकर मध्य एशिया, अफगानिस्तान होते हुए ईरान और पश्चिमी एशिया तक जाता था। इस व्यापार मार्ग ने कुशाणों के लिए इनकम का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान किया। भारतीय वस्तुएं भूमध्य सागरीय, मेडिटरेनियन सी क्षेत्र के शहरों और बंदरगाहों तक भेजी जाती थी, जिससे भारत में सोने, गोल्ड का प्रवाह बढ़ा। व्यापार की उन्नति से तक्षशिला, टैक्सिला, मथुरा और उज्जयिनी जैसे शहर समृद्ध, प्रॉस्परस और महत्वपूर्ण केंद्र, इम्पोर्टेंट सिटीज बन गए। Religion. Indian religions, especially Buddhism, were greatly influenced by the foreigners. It was no longer the simple religion which Buddha had taught. It had changed immensely by now and had split into two parts, Mahayana or the Great Wheel and Hinayana or the Small Wheel. The followers of the Mahayana sect began to worship the images of Buddha and the Bodhisattva. We find many stories about them in the Jakta tales. Soon,
The Mahayana form of Buddhism became the dominant sect and spread throughout China and Central Asia. भारतीय धर्मों, रिलीजन्स, विशेष रूप से बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म पर विदेशियों का गहरा प्रभाव पड़ा। अब यह वह सरल धर्म, सिंपल रिलीजन नहीं रहा जिसे गौतम बुद्धा ने सिखाया था। समय के साथ इसमें बड़े बदलाव, चेंजेस आए और यह 2 भागों में विभाजित हो गया। महायान, महायाना या ग्रेट व्हील, हीनयान, हिन्यना या स्मॉल व्हील। महायान संप्रदाय, महायाना सेक्ट के अनुयायियों ने बुद्धा और बोधिसत्वा की मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप शुरू कर दी। जातक कथाओं, जथाका टेल्स में इनके बारे में कई कथाएं, स्टोरीज मिलती हैं। धीरे धीरे महायान बौद्ध धर्म, महायाना बुद्धिज्म मुख्य संप्रदाय, सेक्ट बन गया और चीन, चाइना और मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया में इसका व्यापक प्रसार, स्प्रेड हुआ। Expansion of Buddhism. Buddhism attracted a large number of followers because of its simplicity. The Buddhist monks did selfless service to spread Buddhism, and many kings became followers of Buddhism. बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म ने अपनी सरलता, सिंप्लिसिटी के कारण बड़ी संख्या में अनुयायियों, फॉलोअर्स को आकर्षित किया। बौद्ध भिक्षुओं, बुद्धिस्ट मंक्स ने निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेस सर्विस करके बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई राजाओं, किंग्स ने भी बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म को अपनाया और इसके विस्तार, एक्सपेंशन में योगदान दिया। उनके प्रयासों से यह धर्म भारत, इंडिया के अलावा चीन, चाइना, श्रीलंका, तिब्बत, म्यांमार और मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया तक फैल गया। Eventually, Buddhism, born in Magad, spread to many parts of the world. Kings like Ashoka and Kanishka took vigorous steps to spread this religion, not only in India but also in foreign countries. Kanishka and Ashoka sent missionaries to Southeast Asia. Today Buddhism is a world religion. As it is casteless, it attracts those wishing to sidestep the caste system. बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म, जो मगध में जन्मा, समय के साथ दुनिया के कई हिस्सों, many parts of the world में फैल गया। सम्राट अशोका और कनिष्का जैसे राजाओं ने इस धर्म के प्रचार के लिए सशक्त कदम, विगरस स्टेप्स उठाए। उन्होंने न केवल भारत, इंडिया में बल्कि विदेशों, फॉरेन कंट्रीज में भी बौद्ध धर्म का प्रसार किया। अशोका एंड कनिष्का ने अपने धर्म प्रचारकों, मिशनरीज को दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया भेजा, जिससे यह धर्म श्रीलंका, तिब्बत, चीन, चाइना, जापान और म्यांमार जैसे देशों तक पहुंच गया। आज बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म एक विश्व धर्म, वर्ल्ड रिलीजन बन चुका है। यह एक जातिविहीन धर्म, कास्टलेस रिलीजन है, इसलिए यह उन लोगों को आकर्षित करता है जो जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम से बचना चाहते हैं। Today countries like China, Thailand, Japan, Myanmar and Sri Lanka are known as Buddhist countries. Buddha has been rightly called the light of Asia. Today, Buddhism has even become popular in Europe. आज चीन, चाइना, थाईलैंड, जापान, म्यांमार और श्रीलंका जैसे देश बौद्ध धर्म,
बुद्धिस्ट कंट्रीज के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। गौतम बुद्धा को सही मायनों में एशिया का प्रकाश, लाइट ऑफ एशिया, कहा जाता है। समय के साथ बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म ने न केवल एशिया बल्कि यूरोप में भी अपनी लोकप्रियता बढ़ाई है। आज यह एक वैश्विक धर्म, ग्लोबल रिलीजन बन चुका है, जिसे लाखों लोग अपने आध्यात्मिक मार्ग, स्पिरिचुअल पाथ के रूप में अपना रहे हैं। साइंस। Indian astronomy and astrology profited by contact with the Greeks. We notice that the Greek terms related to the movement of the planets are almost the same as the terms used in Sanskrit texts. भारतीय खगोलशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी और ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी को ग्रीक्स के संपर्क से बहुत लाभ हुआ। ग्रीक भाषा में ग्रहों की गति से जुड़े शब्द लगभग वही थे जो संस्कृत ग्रंथों, संस्कृत टेक्स्ट्स में उपयोग किए जाते थे। इस संपर्क से भारतीय विद्वानों ने ग्रहों, प्लैनेट्स और खगोलीय गणनाओं, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस को और अधिक विकसित किया, जिससे आगे चलकर गणित, मैथमेटिक्स और कालगणना, टाइम कीपिंग में भी प्रगति हुई। There is no denying the fact that Indians are not indebted to the Greeks in medicine. Physicians like Sushruta and Charka dealt with these subjects adequately. Charka lived in the court of Kanishka. The Charka Samhita contains names of many plants and herbs from which drugs were prepared to treat the ailing. Considerable achievements were made in the field of surgery. इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय चिकित्सा, इंडियन मेडिसिन, ग्रीक्स की देन नहीं थी। सुश्रुता और चरका जैसे प्रसिद्ध चिकित्सकों, फिजिशियंस ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चरका संहिता में कई औषधीय पौधों, मेडिसिनल प्लांट्स और जड़ी बूटियों, हर्ब्स का उल्लेख मिलता है, जिनका उपयोग रोगियों के उपचार के लिए किया जाता था। चरका राजा कनिष्का के दरबार में रहते थे और उन्होंने चिकित्सा शास्त्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार सुश्रुता ने शल्य चिकित्सा, सर्जरी के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की। भारत ने शल्य क्रिया, सर्जिकल प्रोसीजर्स में अद्वितीय प्रगति की थी, जो प्राचीन समय में अन्य किसी भी सभ्यता से कहीं आगे थी। Period between 200 BC to 300 AD. During this period, the Indians got tremendous achievement in all walks of life. Indian culture was enriched by the influx of new knowledge and new practices. Modern India's official calendar is the ancient Saka calendar, founded by Kanishka. ईसा पूर्व 200 से 300 ईस्वी का कालखंड। इस अवधि में भारत, इंडिया ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां, ट्रिमेंडस अचीवमेंट्स प्राप्त की। इस काल में भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर, नए ज्ञान, न्यू नॉलेज और नवीन प्रथाओं, न्यू प्रैक्टिसेस के आगमन से समृद्ध हुई। इस समय कई महत्वपूर्ण धार्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक, रिलीजियस, साइंटिफिक एंड कल्चरल परिवर्तन हुए, जिनका प्रभाव आगे चलकर भारतीय समाज में गहराई से देखा गया। कनिष्का द्वारा स्थापित शक संवत सका कैलेंडर आज भी भारत का आधिकारिक पंचांग, ऑफिशियल कैलेंडर है, जो इस काल की महान उपलब्धियों में से एक है। द बिगिनिंग्स ऑफ भक्ति। The beginning of the Bhakti movement was an important achievement of this period.
The concept of bhakti originates from the Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita is a part of the great epic, the Mahabharata. In the Bhagavad Gita, Krishna asks his devotee Arjuna to surrender in him, as only he can set him, Arjuna, free from every evil. इस काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट की शुरुआत थी। भक्ति की अवधारणा का मूल भगवद गीता, भागवत गीता में मिलता है, जो महान महाकाव्य महाभारता का एक हिस्सा है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा, अपने भक्त अर्जुना से कहते हैं कि यदि वह स्वयं को पूरी तरह समर्पित सरेंडर कर देगा तो वह उसे सभी पापों से मुक्त कर सकते हैं। इस विचारधारा ने आगे चलकर भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट को जन्म दिया, जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और पूर्ण समर्पण, लव, डिवोशन एंड कंप्लीट सरेंडर टू गॉड को सर्वोपरि माना गया। Bhakti comes from the Sanskrit word bhaja, which means to share bhaga or good fortune by the blessing of God. Bhakti means devotion or complete unquestioning surrender before the Lord. The devotee is known as a bhakta. In bhakti, there is no place for desire, only sacrifice. Bhakti का अर्थ और महत्व, meaning and importance of bhakti. भक्ति शब्द संस्कृत के भज, भाजा शब्द से आया है, जिसका अर्थ है भगवान की कृपा से प्राप्त सौभाग्य, गुड फॉर्चून बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड को साझा करना। भक्ति का अर्थ, मीनिंग ऑफ भक्ति, यह समर्पण, डिवोशन या ईश्वर के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण, कंप्लीट अनक्वेश्चनिंग सरेंडर बिफोर द लॉर्ड को दर्शाता है। भक्ता, जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और प्रेम से ईश्वर की उपासना करता है, उसे भक्त, डेवोटी कहा जाता है। भक्ति का स्वरूप, नेचर ऑफ भक्ति, इसमें इच्छाओं, डिजायर्स के लिए कोई स्थान नहीं है, बल्कि केवल त्याग, सैक्रिफाइस ही महत्वपूर्ण है। Bhakti does not allow any Brahmanic creeds or rituals. Bhaktism emphasizes devotion and individual worship of the god or goddess. The ideas of the Bhakti movement later became the central feature of Hinduism. Bhakti आंदोलन की विशेषताएं, features of Bhakti movement. ब्राह्मणवादी परंपराओं और कर्मकांडों का विरोध। भक्ति में कोई कर्मकांड, रिचुअल्स या जातिगत बंधन, ब्राह्मणिक क्रीड्स नहीं होते। निजी भक्ति और आराधना, इंडिविजुअल वर्शिप। भक्ति आंदोलन ने व्यक्तिगत उपासना, पर्सनल डिवोशन और भगवान के प्रति गहरे प्रेम, डीप लव फॉर गॉड को महत्व दिया। हिंदू धर्म पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन हिंदुइज्म। बाद में भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट के विचार हिंदू धर्म की मुख्य विशेषता, सेंट्रल फीचर ऑफ हिंदुइज्म बन गए। भक्ति आंदोलन ने समाज में सामाजिक समानता, प्रेम और भक्ति की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे यह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया।